ગફુર ચાચા છે કે નહીં? નથી. ચાલો નલિનભાઈ, હાજી, તમે આ લાવણ્યા પટેલનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવો અને એમને સ્પીચ આ માટે આપી દઉં. હાજી. બેન ક્યાં વચ્ચે? હેલો, બોલો બોલો. સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલના સભ્યોને હાર્દિક આમંત્રણ છે. આજના આપણા મેઇન સ્પીકર લાવણ્યાબેન પટેલ છે, જો અને કાઉન્સિલર છે. અને નલિનભાઈ, તારો અવાજ કપાય છે. એક મિનિટ ક્યાંક એડજસ્ટ કરો. नलिन भाई पहले सबको म्यूट कर दीजिए, तब आपकी आवाज आएगी. एक मिनट. गधा है यार, सबको पूरी दुनिया को बचाने का. લાવણ્યાબેન પટેલનો Let's just recite the 15 tenets together. It's time. Time for what? For you, it's your time to get back into the study. Let's keep round to himself. Lavanya Patel, renowned, prominent, and eminent clinical psychologist and counselor, hypnotherapist. The first chair. नलिन भाई यदि बराबर नहीं चल रहा है तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ, कोई बात नहीं. हाँ, लेकिन एक बार आप सबको म्यूट कर दीजिएगा ना, तो आपकी आवाज क्लियर आएगी. करेक्ट. सबसे पहले मैं म्यूट कर देता हूँ सबको. आप सबको म्यूट कर दीजिए और सिर्फ मुझे पहले आप ही बोलिए. अभी सबको म्यूट कर दिया है और अभी ये आपका इंट्रोडक्शन शेयर कर रहे हैं. NLP master practitioner, advanced life coach, motivational speaker, and trainer. The officiate and proclaimed director of Ananya Psychological Assessment and Therapy Center has extensive knowledge, a long-standing, deep and profound experience of more than a decade and a half. Bestowed with invincible talent, dedication, passion for work, she has a landmark identity and is presently very actively associated with multiple institutions as a trainer,
counselor, mentor, offering her expertise in divergent areas. She has been throughout a meritorious pupil, student, scholar, and a gold medalist in academic career. She is a National Merit Scholarship holder, a rank holder, NCC2, nominated as a university president. Nationally conferred upon with unsurpassable skills, she has to her credit very productive, fruitful 19 years, during which she has successfully trained thousands of people, emerging youth across the country. Her commendable contributions, which actually showcase her creativity and expertise, are presently very actively involved in de-addiction and cancer awareness program in youngsters and females, played key role in suicide prevention symposium as an expert panelist, and took the audience in her stride with her brainstorming session. She showed her efficacy and expertise in an open talk with teenagers about puppy love, sex, and relationship. Her profound and resounding experience of career guidance for teens and passion should be the profession is her favorite topic. Thousands of parents get the effective tips for the conscious parenting continues. Khushiyon ka khazana is her favorite topic, which rendered so effectively by her, leave the classes and masses awestruck. For couples, it is relationship revisited, revised and revived in her sessions of Love You Zindagi. And the senior citizens feel young in Ye Zindagi Milegi Na Dobara. In Swachh Bharat Abhiyan, she was a torch bearer with the ambassador Brahma Kumaris. Young India is learning to be the lighthouse in her guidance. She is a top-notch trainer for personality development programs for management students. Some of the striking highlights of her training in the recent times are: in a grand celebration of Golden Jubilee of CISF New Delhi, chief officers and their families learned to keep work and life balance, which is the key to promote harmony in the world. Thousands of teachers are actually reborn metaphorically, learning from her communication skills and effective ways to deal with their emotional behavioral learning issues in the classroom. At Bangalore Rotary International Conference, she effectively planted in everybody's mind to convert work pressure into work pleasure, has effectively taught techniques of stress-free life to doctors. Re-engineer your life for the engineers. Number of chartered accountants learned to live life with purpose, passion, and power. She has empowered corporate world many times with goal setting, time management, teamwork, conflict resolution, and purpose of life. Empowered thousands of females in her workshop for financial, physical, and emotional independence. Her seminars, workshops have captured headlines in national newspapers like The Hindu. She has touched so many lives of people ranging from Vapi to the national level. In her YouTube videos, she leaves a message related to anxiety, depression, relationship, powerful parenting, mental health, effective study habits with very practical experiential techniques. Her many talk shows have aired on the radio, TV shows, touching the heart of people and creating a new wave of happiness across the country like Delhi, Mumbai, Goa, Pune, Bangalore, Gulbarga, Bijapur, Kota, etc. A face in the crowd, a lighthouse to many who need her guidance and counseling. She's a mentor, counselor who has touched so many lives, has made indelible mark, and always striving for excellence, which emanates from her powerful personality. She has the spirit to strive, to seek, to fight, and never to yield. With this, ladies and gentlemen, I present before you psychologist and counselor, hypnotherapist and NLP trainer, Lavanya Patel. આપણી વચ્ચે લાવણ્યા પટેલને આવકારતા ઘણો આનંદ થાય છે. એઓ સાયકોલોજિસ્ટ અને કાઉન્સિલર છે. I'm Vikas Mishra. As you know, welcome to our session that is an inspiration talks with Vikas Mishra. Today we have is Lavanya Patel ma'am. I don't think कि मैम को मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए, but let me tell you that Lavanya. Okay. આજનો
આપણો બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ વિષય છે લાવણ્યાબેનને આપેલો, આફતને બનાવવો અવસર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારના COVID-19 કોરોનાના મહામારીના કાળમાંથી આપણે પસાર થઈ રહ્યા છે. દુનિયામાં લગભગ 9 લાખ લોકો કોરોનાના શિકાર થઈને જાન ગુમાવ્યો છે. આપણા ભારતમાં લગભગ 80,000 લોકો કોરોનાના કારણે મૃત્યુ પામ્યા છે. આ એક મોટી આફત છે. એ જાનહાનિ તો થઈ જ છે, પણ તેની સાથે સાથે આપણા ધંધા ઉદ્યોગો ભાંગી પડ્યા છે. લોકડાઉનની પરિસ્થિતિના કારણે લોકો ઘરની બહાર નહીં નીકળી શકે અને ઘણા એવા મુશ્કેલીજનક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તો આવા આફતના કાળને આપણે અવસરમાં કેવી રીતે પલટાવવો? આપણા સિનિયર સિટીઝન ઘરમાં બેસીને મૂંઝાય છે, બહાર નીકળી નથી શકતા. તો આવા સમયે એ લોકો કઈ રીતે આ સમયનો સદુપયોગ કરી શકે કે આપણે નહોતા વાંચેલી ચોપડીઓ કબાટમાંથી કાઢીને વાંચી શકીએ. આપણી જે હોબી છે કે ડ્રોઈંગની, પેન્ટિંગની, જે આપણે કરી નહીં શક્યા, તો એ આ એક અવસર સમજીને આપણે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. આપણે કંઈક નવું કરવા માટે વિચારતા હતા અને નહીં કરી શક્યા, એ બધું કરવાને માટેનો આપણને આ એક ઉત્તમ તક મળી છે. અને સૌથી મોટી ઉત્તમ તક આપણે આપણા અંદરની ખોજ કરવાની મળી છે. આપણે ભીતરમાં ડોક્યું કરવાની મળી છે. આપણને યોગ, મેડિટેશન કરવાની માટે આ તક મળી છે, એનો આપણે સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આપણને એ માટે ગાઈડ કરવા માટે લાવણ્યાબેન આપણી વચ્ચે આવી ચૂક્યા છે. વી વેલકમ લાવણ્યા પટેલ. અને એમને હવે આ માઇક સોંપું છું. ઓવર ટુ लावण्या पटेल. हाँ करिए. मेरी आवाज सबको आ रही है? तो ऐसे ऐसे कर दीजिए. आ रही है? यस, आ रही है. ओके. सो नलिन भाई, एक बार सबको अनम्यूट करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर मैं बोलूंगी तो म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, सबको अनम्यूट करें. हाँ, सबको कर दीजिए. हाँ, ओके, राइट. सो रविवार की आवाज आ रही है? आ रही है. ओके. सो रविवार की शाम को साथ हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे और बहुत आदरणीय और श्रद्धेय सभी मेरे अंकल है, जो मेरे आंटी है और कुछ थोड़े मुझसे बड़े हैं, आप सब सामने अपने हार्दिक अभिनंदन. अब आप लोग सबके सब पहले एक बार मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखा दीजिए. मुस्कुराता हुआ. वेरी गुड. आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम सब एक साथ एक गीत के साथ करेंगे. मुस्कुराहटों के साथ करेंगे एक साथ. शुरू करेंगे, गाएंगे, ठीक है? गायक हूँ, रमेश भाई आपका देखिए अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही. शुरू करके सर. किसी की मुस्कुराहटों पे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान. आगे बोलिए नलिन भाई. किसी के नाम है. एक बार फिर से.
शुरू करें? खुले उधार किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार ना उसी का नाम है। सीधा हाथ ऊपर करें, सीधा हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ और पीछे लेके जाइए, पीछे और जल्दी से अपनी पीठ पर यस क्यों? क्योंकि हाँ अब नलिन भाई unmute कर दीजिए। के अंदर बैठ अब म्यूट कर दीजिए। अरे सबको म्यूट करने में नहीं मुझे कर दीजिए, अभी ठीक है। अभी हाँ, सबको म्यूट करने में आप भी म्यूट हो गए। नहीं अभी आ रही है, अभी आ हाँ, रही है। हाँ। सबको आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। So, बहुत बड़ा सा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे ख्याल से कुछ समझ में नहीं आया। मैं छोटा सा बता देती हूँ। मैं लावण्या पटेल हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और जो अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमेशा खुशी दिखती है, हमेशा स्वास्थ्य दिखता है, इस चीज में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। लावण्या जी आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। अच्छा लो आ रहा है, अभी बताइए, अभी क्लियर है? क्लियर है। अभी क्लियर है? हाँ हाँ ओके परफेक्ट, ठीक है। सो अब यदि हम आज का प्रोग्राम शुरू करें तो सबसे पहले तो मैं सारे सीनियर सिटीजन्स का और वापी काउंसिल का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं उन देश के सीनियर सिटीजन से बात कर रही हूँ जिसमें 69 इयर्स के नरेंद्र मोदी जो हैं वो युवाओं के मार्गदर्शक है, रोल मॉडल है। 83 इयर्स के जो एपीजे कलाम है जिनकी मृत्यु हुई है, स्टूडेंट्स के वो रोल मॉडल रह चुके हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है आज भी युवा लोग पढ़ते हैं और उनसे साहस लेते हैं, दृढ़ता क्या होती है, मनोबल क्या होता है और आत्मबल कैसे बढ़ाना, उसके लिए वो सीनियर सिटीजन आज हम सब के लिए रोल मॉडल है। और महाभारत के समय भी आप देखो विदुर का उल्लेख होता है, चाणक्य की नीति का आज भी उल्लेख होता है बिजनेस में। महात्मा बुद्ध देखो, महावीर स्वामी देखो और विवेकानंद देखो, उनके गुरु देखो परमहंस, ये सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स हैं और आज सारे युवाओं के लिए वो प्रेरणा है और लोग उनको आज भी फॉलो करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हर मोटिवेशनल सेमिनार में उनका कहीं ना कहीं उल्लेख होता है। तब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि ऐसे लोग जिनका मैंने नाम बताया उनकी जवानी भी अनमोल थी और उनका बुढ़ापा भी अनमोल था, जो आज तक युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। और जब देखा जाए कि आजकल बहुत से परिवारों में जो सीनियर सिटीजन्स हम देखते हैं, हमारे ही माता पिता को लो, सास ससुर को लो, हमारे अड़ोस पड़ोस के सीनियर सिटीजन्स को दो, तो बहुत बड़ा फर्क अपने को समझ में आता है। कैसा फर्क आता है कि कहीं दृष्टिकोण में फर्क होता है, विचारों में फर्क हो जाता है, हमारे व्यवहार अलग हो जाते हैं और इसी वजह से बच्चे जो हैं कभी कभी माता पिता का तिरस्कार करते हैं, सास ससुर का अपमान करते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं और कभी कभी तो बहुत सारा आजकल देख रहे हैं कि ये वृद्धाश्रम में भी पहुंच जाते हैं। तो कुछ तो फर्क होगा ना कि जिनका नाम मैंने बताया आपको, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे एपीजे कलाम हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इनकी विचार शैली और उनकी विचार शैली जो तिरस्कार में चले जाते हैं, कहीं तो फर्क आता है ना? आता है? लगता है ऐसा? ऐसे करके बताओ यदि लगता है तो, राइट ना? तो अब बताओ, अब वर्तमान जो अपना समय है, नलिन भाई आपने स्पीकर्स व्यू में रख दिया? हाँ, अब अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन हुआ उसके बाद, तो लॉकडाउन हट रहा है, फिर उसी के बीच में बहुत सारा ऐसा हुआ कि कई साथी बिछुड़ गए हमारे। फिर घर में अब ऐसा होता है कि महीनों से सारे सीनियर सिटीजन्स क्योंकि बाहर उनकी हेल्थ को बहुत खतरा है तो उनको बंद रहना पड़ता है।
फिर जब घर में सारा परिवार इकट्ठा है तो अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में बहुत मतभेद भी हो जाता है। फिर यही एक समय है जिसमें आपका बाहर जाना मुश्किल है और दवाइयों का भी इंतजाम कभी कभी बराबर नहीं होता, कभी पैसों की तंगी हो जाती है, कभी शरीर में कोई बीमारी होती है, कभी दुखावा होता है, कभी दिमाग में टेंशन होता है, कभी दोस्तों से मिलना आपका बंद हो गया। और जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हो तो उसमें हमेशा निगेटिव न्यूज़ होती है, जिसकी वजह से मन में डर होता है, घबराहट होती है, और कुछ के लिए तो बहुत ज्यादा ये तकलीफ का समय बन गया है कि नहीं? लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस समय को अपने वृद्धि और विकास का समय बना लिया है। जैसे एक टाइम होता है हम सबका, जैसे आज हम लोग का है कि हम लोग बाहर विस्तार करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बिजनेस बढ़ाना, पैसे कमाना, बहुत बाहर विस्तार होता है। लेकिन एक टाइम आता है कि उस इस विस्तार को अपने को सिमटना पड़ता है और अपने अंदर का विस्तार शुरू करना पड़ता है। और ये अंदर की यात्रा कुछ लोगों ने शुरू की, कुछ सीनियर सिटीजन, क्योंकि जब नेट पे देखने जाओ, न्यूज में देखने जाओ, तो कुछ लोगों ने तो कमाल करके रखा है इस समय को। जैसे अभी नलिन भाई ने बताया कि कुछ लोगों ने योगा सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी बाहर जाना नहीं है तो घर में रहना है, तो नए नए योगा कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, मेडिटेशन सीखना शुरू किया, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन का भोजन है, और जितना वो भोजन न्यूट्रिशन वाला होगा, हमारा मन भी स्वस्थ और तन भी स्वस्थ रहेगा। कुछ लोगों ने, सीनियर सिटीजन ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, किसी ने अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना शुरू कर दिया, किसी ने पढ़ना, जो बहुत समय से पढ़ाई नहीं की थी, अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़ना शुरू किया, किसी ने नया नया कुकिंग का नया नया कुछ सीखना शुरू किया, किसी ने गार्डनिंग शुरू की। मेरे ससुर जो है दमन में रहते हैं, उनका शेड्यूल इस समय, वो 5 महीने से बिल्कुल बाहर निकले, गेट से बाहर ही नहीं निकले, लेकिन उन्होंने जो शेड्यूल बनाया, सुबह उठना है, घर में ही ऊपर से नीचे तक, हमारी बहुत 2-3 मालाएं ऊपर से नीचे तक चलना है, और उनकी उम्र अभी 75 ईयर्स की है। फिर उसके बाद गार्डनिंग करना है, बिल्कुल लिमिटेड खाना है, एक्सरसाइज करना है, शाम को भी उनको चलना है, उनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद उनकी कुछ फेवरेट सीरियल्स है वो देखते हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोरोना या लॉकडाउन का असर उन पे नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ लक्ष्य बनाया है कि कभी भी बच्चों के भरोसे हमें रहना ही नहीं है, न शरीर से, न मन से, और न आर्थिक मदद लेना। और उन्होंने इस तरह से अपने को इतना फिट रखा है, जब 75 ईयर्स की एज में आज भी हमारे साथ फॉरेन भी घूमते हैं, बाहर भी जाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी बहुत सारी तपस्या है ना। अब वो गार्डनिंग भी करते हैं, कभी कभी सब्जियों की कटिंग भी करते हैं, घर की क्लीनिंग भी करते हैं। अब बताइए कि जब बहुत सारे लोग जिन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के पीरियड में अपने विकास को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को बहुत ज्यादा स्वस्थ करने की सोची, तो उनका परिणाम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या कारण है कि कुछ लोग मुसीबत को भी अपना अवसर में कन्वर्ट कर देते हैं, और कुछ लोग मुसीबत के बारे में बात कर करके रात दिन कोरोना कोरोना कोरोना, डर और भय में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कब कोरोना उन पे अटैक करता है, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और बहुत नेगेटिव विचार होते हैं। तो आप में से कोई जवाब देना चाहेगा कि क्या कारण है कि कुछ लोग उसको अवसर बनाते हैं और कुछ लोग जो है उसी के बारे में बात कर करके अपने जीवन को बहुत परेशान कर लेते हैं? कोई भी अनम्यूट करके जवाब देना चाहेगा, ऐसा क्यों होता है? दिनेश भाई बताना चाहेंगे? बताओ ऐसा नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, 5:29 हो गया है, अभी हमारे पास 15 to 20 मिनट की है। अनलिमिटेड है, घबराओ मत। चिंता मत ओके। करो। चलो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। मैं भी बता देती हूँ। जो हो गया, हाँ, जो हो रहा है, उसको भूल जाओ। हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करने का? जो परिस्थिति है, जब तक दुनिया में वैक्सीन नहीं आएगी, एक कोरोना से मौत होता रहेगा, तो हमें सिर्फ प्रिकॉशन ही लेने का है। वेरी गुड। और प्रिकॉशन ही लेने का, परिस्थिति को हम चेंज, वो अपने हाथ में नहीं है, तो उसके लिए अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर। तो सोचने का ही नहीं। हमें क्या करना का है? इसका सबसे बेहतरीन
इस्तेमाल करने का है। मैंने फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करना चालू कर दिया। क्या बात है। मैंने एक्सेल का प्रोग्रामिंग करना चालू कर दिया, कंप्यूटर सीखना चालू कर दिया। मेरे पास तो अलमारी में जो किताबें पड़ी थी बरसों से, उसको बाहर निकाला, धूल साफ किया और पढ़ना चालू कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे हाँ वेल डन। हाँ जी, अगली मुझे चाय बनाना सिर्फ आता था, तो मैं थोड़ा कुकिंग में भी इंटरेस्ट लेना चालू किया। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई है? शुभा बेन, आप बताओ। मैं नीला बेन। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ बोल ली। हाँ आप बताओ। मेरे को तो ये लॉकडाउन लगता ही नहीं है, क्योंकि मैं पूरे दिन काम करती हूँ। वेरी गुड। शाम को अपने ही शहरी में वॉक करती हो। क्या बात है। हाँ। और YouTube से खाना बनाना सीखकर घर में अच्छा खाना खिलाती हो। नसीबदार लोग हम मेरे हैं। बेटे को बहुत डर है कि मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग है और मैं उनको यही बताती हूँ कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तुम घबराओ मत, तुम अपना काम करो, मेरे को अपने काम करने दो। और मेरे को लॉकडाउन जैसा कुछ लगता ही नहीं है। वेरी नाइस। देखो क्या है, बराबर है। अरे दिनेश भाई बहुत नसीबदार छे, जेने आनो મળે। चंद्रवंदन सर, सर आप बताइए। आप बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ आवाज नहीं आवे सोनी भाई। हाँ बोलो 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 सोनी हेलो भाई। हेलो बोलो। हाँ जी बताइए। हेलो સોની ભાઈ ના અવાજમાં કાયમ આ તકલીફ થાય છે। हेलो 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 અરુણાબેન તમે કઈ કહેશો? हेलो 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 હા અરુણાભાઈ બોલો। हेलो 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 लावण्या बेन, लावण्या हाँ बोलिए। हाँ रियली हम बहुत याद करते थे आपको, हेलो याद कर रहे हैं आपको कि हेलो। थोड़ा इस तरह का गाइडेंस चाहिए था कि ये कोरोना काल में घर में है ना, थोड़ा मेंटली वो हो जाता है ना, डिप्रेस साइकोलॉजिकली वो हो जाएगा हमको कि बस बंद है घर में। तो अभी आपका वो गाइडेंस चाहिए था हमें, उसके लिए हमेशा सब मिलेगा, इसलिए आप खुल के बोलोगे ना तो मैं उसी तरह से बात करूंगी। और हाँ। कोई करना चाहता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी हाँ सुनेंगे। जी आपकी आवाज नमस्ते, मेरे पास तो टाइम बहुत कम मिल रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन के अंदर टेलीफोन पे व्हाट्सएप पे कम से कम 6-7 पेशेंट आ जाते हैं। मैं आयुर्वेदा में डॉक्टर हूँ। अरे वाह। मुझे दिन में 4-5 तो कम से कम 4-5 फोन आ जाते हैं कि साहब ये हो रहा है, क्या दवा लूं। फिर मुझे उसको व्हाट्सएप करना पड़ता है, फिर व्हाट्सएप के बाद भी समझाना पड़ता है कि अभी उसको इस तरह से पाउडर करो, इस तरह से ये करो। तो कम से कम मेरा जो प्रयोग था 25 मार्च को हमने रजू किया था, हमारी टीम है डॉक्टरी टीम, 25 मार्च को हमने रजू किया था कि 15 दिन के लिए सुदर्शन गणवटी गड़ूची गणवटी लेना है। उसके बहुत से 1100 लगभग कुटुंब लोगों ने हमारा यूज किया। मुंबई, सूरत, बांद्रा, अंधेरी, नवसारी सब जगह से मेडिसिन लेने के बाद दिखाने के भी फोटो आते हैं। और छोटी मोटी बीमारी के लिए अभी अपने सीनियर सिटीजन वाले में कल की बात करता हूँ। कल मुझे अपने देसाई भाई मिल गए, बोलते साहब ये हो रहा है, क्या करूं। मैं बोला तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं आपको 10 मिनट में देता हूँ। बाद में 10 मिनट में उसको एडवाइस दे दिया कि भाई इतना करो, बलसार जाओ, दवाई लेके आओ और यूज करो। तो मेरे पास तो टाइम का भी तो मुझे तो लगता है कम लग रहा है, समय बहुत कम लग रहा है। वो लोगों ने अपने को किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में लगा लिया, उनके लिए तो महेंद्र भाई पानी बन गया। ठीक है, चलो हाँ थैंक यू महेंद्र भाऊ सर। हेलो મહેન્દ્ર ભાઈ, હા મહેન્દ્ર प्रणाम। बोलना चाहते हैं? હા, મહેન્દ્ર ભાઈ ને સાંભળી લે
ને સાંભળવાની આ સારો એક આઈડિયા છે અને બધાને આ રીતે મળાય છે. આઈડિયા સારો છે નલિનભાઈ નો, ચાલુ રાખો કારણ કે આ કોરોના હજુ લાંબુ ચાલવાનું છે એમ લાગે છે. એક રીતે આ રીતે મળવાની બધાને પ્રેક્ટિસ કરાવો છો એટલે એ આ શું છે પેલી પેલા પાકા ઘડા કાંઠા ચડાવવા જેવું છે પણ છતાં મજા આવે છે. કઈ વાંધો ચાલુ રાખો. એટલે તમે શરૂઆતમાં કીધું ને જેટલા વધારે સભ્ય આવે એટલું વધારે સારું. हाँ लावण्या बहन अभी चालू करिए आप. राइट ओके चलो. अब हम सबका जीवन में थोड़ा सा उम्र का थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक समय होता है कि हम सब बाहर बहुत विस्तार करते हैं, लेकिन अब जब प्रकृति बताती है हमें या हम दूसरों से शिक्षा लेते हैं कि अब हमारा विस्तार बाहर ज्यादा नहीं, अब हमारा विस्तार अंदर की तरफ होना चाहिए, सार की तरफ, आंतरिक यात्रा करने का टाइम आ गया है. क्योंकि अब बहुत बाहर घूमना, बहुत लोगों से मिलना, अब प्रकृति भी अलाउ नहीं कर रही है. इसलिए सोचना बहुत जरूरी है कि जब आप सब अपने घर के मुखिया हैं, आपके बच्चे कमाने जाते हैं, बहू भी कमाने जाती है, उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तब जब आप घर में क्या वैसा कर सकें कि आपकी कीमत नरेंद्र मोदी की तरह, एपीजे कलाम की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह, विवेकानंद की तरह और परमहंस की तरह हो जाए. क्योंकि जब हम लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं और उसमें देखते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं घर में उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत सम्मान नहीं मिलता, घर के कई लोग तो कोने में पड़े रहते हैं, बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता बात करने का. ये यथार्थ है. तो अब हमें अपने इस यथार्थ को चेंज करना बहुत जरूरी है. क्यों, वो मैं बताती हूँ आपको क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हम लोग रोज कम से कम 70 से 80 पेशेंट देखते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जो साइकेट्रिस्ट हैं. यंगस्टर्स का जो इस समय दिमाग है, जो जवान है, उन बच्चों का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, अनस्टेबल है, टोटल रेस्टलेस है. इस समय लोगों का बिजनेस पूरी तरह से डाउन है, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और इतना ज्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल होता है कि उसमें एडिक्शन भी हो रहा है. बच्चे पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं. अब दिन भर उनके सिर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उनकी लाइफस्टाइल खराब हो गई, रात भर जगते हैं, दिन को वो सो रहे हैं. और जैसी न्यूज देखो, सोशल मीडिया देखो, तो इसका मर्डर, उसका डेथ, कंगना का, सब यही कुछ केओस चलता है जो तनाव पैदा करता है, जो डिप्रेशन पैदा करता है, जो निगेटिविटी पैदा करता है. में आप देखो, हर घर में देखो, अधिकतर घरों में पति पत्नी के बीच में दरार चल रही है, अधिकतर घरों में बच्चों को लेके फाइट चल रही है. किसी को डर है, बेचैनी होती, घबराहट होती है, कोई स्मोकिंग में पड़ गया, कोई ड्रिंकिंग में पड़ गया है, कोई हमारे यहाँ आपको पता नहीं, लेकिन इतने छोटे 11th 12th के बच्चे आते हैं जो वीड लेते हैं, जो ड्रग लेते हैं. और अब तो मरने के लिए कोई उम्र भी फिक्स नहीं है, 30-35 हुआ नहीं तो हार्ट अटैक हुआ और साफ हो जाता है, और इतनी बीमारियां हो रही हैं. तो अब सोचो कि आप सब अभी भी स्वस्थ तो हो, मन शांत तो है, जीवन में जो भी किया संतुष्ट तो है, अभी किसी को पति पत्नी का साथ है, शायद किसी का छूट गया है, लेकिन फिर भी आपका मन यंगस्टर्स से बहुत ज्यादा स्थिर है. अब इस समय जब सारे यंगस्टर्स कम से कम 40-45 साल के लोग पूरी तरह से किसी न किसी स्ट्रेस में, बिजनेस में, बीमारी से, तनाव में, बच्चों की प्रॉब्लम या रिश्तों में बिगड़े, सबका यदि दिमाग में टेंशन है, तो इस समय आप क्या कर सकते हो इस उम्र में. अब मैं आपको बता दूं, आप सीनियर सिटीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपका काम खत्म हो गया. शायद आपको यदि वर्तमान स्थिति को देखो, जहां बच्चों के बच्चे सब टेंशन से ग्रसित है, मानसिक बीमारी से ग्रसित है. 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी डिप्रेशन है और एंजाइटी है, और 9वीं और 10वीं का बच्चा भी यदि सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब कि अभी भी सीनियर सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट काम बाकी है. और ये वो काम है जिसकी वजह से आप सिर्फ माता पिता नहीं रहोगे, दादा दादी नहीं रहोगे, लेकिन पूज्य नहीं बन जाओगे. अब वो कौन सा काम कर सकते हैं आप बताओ. सबसे पहले तो ये देखो कि इस समय जरूरत किसकी है. जब लोगों को इतना तनाव है, इतना टेंशन है, मन में डर बैठा हुआ है कि किसी को कुछ हो न जाए, उस समय सबसे ज्यादा मानसिक अशांति है. अब बताइए कि जब सब तरफ मानसिक अशांति है,
तो आप क्या कर सकते हो? दिनेश भाई आप बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि WHO के आंकड़े बोलते हैं हर 4 में से 1 को डिप्रेशन की बीमारी है। तनाव की बात नहीं कर रहा है, डिप्रेशन की बीमारी है। और उसमें भी सबसे ज्यादा, अभी 2 दिन पहले हमारा सेशन हुआ था, सबसे ज्यादा डिप्रेशन यंगस्टर्स को ले, 40 से 45 साल के लोगों को, सीनियर सिटीजन को नहीं है, यंगस्टर्स को है। सबसे ज्यादा एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट यंगस्टर्स को है। सबसे ज्यादा आत्महत्या यंगस्टर कर रहा है, बराबर। तो अब बताइए कि जब पूरी दुनिया की ये हालत है, उस समय अभी भी माता पिता का रहना, सास ससुर का घर पे रहना कितना ज्यादा सार्थक है और कितना बड़ा काम है। और यदि आप अभी ये काम नहीं कर रहे तो अब करना जरूरी है। कौन सा काम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनका मन है बहुत ज्यादा परेशान। आपको आंकड़े पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 65% लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम तनाव से ग्रसित हैं। और ये कहीं बाहर वाले नहीं, अपने बच्चे, ये अपने बच्चे जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ शायद आप रहते हैं, उनको ये हालत है। तो अब बताइए कि आप माता पिता क्या कर सकते हो। माता पिता हमेशा पूजनीय क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन भर दिया है, जीवन भर दिया। जिस दिन हम माँ बाप बने उस दिन से हमने अपने तन से दिया, अपने धन से दिया और अपने मन से दिया, हमेशा। इसलिए माता पिता की बराबरी दुनिया में किसी से नहीं हो पाई। अब क्या होता है, जैसे ही उम्र होती है, आपने यदि अपना रोल जो आप देते थे मांगना शुरू करते हैं ना, ये आशा में कि मैंने इतना जीवन में किया, अब बच्चे मेरा करेंगे, बस वहीं पर पासा पलट जाता है, वहीं पासा पलटता है। इसलिए ध्यान से सुनो, पहले आपने अपने तन से बच्चों की, परिवार की सेवा की पूरी जान लगा के। उसके बाद आपने बहुत पैसे कमाए, धन से बच्चों की परवरिश की, उनको एजुकेशन दिया, उनका शादी ब्याह किया। और आज उनकी हालत ये है कि वो जो चाहते हैं ना वो उस एम्बिशन तक पहुंच पाते हैं, जो कमाना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे, और इस टेंशन में वो बीमार पे बीमार हो रहे हैं और उनके रिश्ते भी टूट रहे हैं और वो एडिक्शन में जा रहे हैं। अब आपका तीसरा वाला काम शुरू होता है कि जब पूरी दुनिया मानसिक रूप से अशांत है, रात को नींद की दवाई खा के ही सो पाती है, इस समय आप सिर्फ मन से उनको शांति का दान दो, सुख का दान दो, उनके मनोबल को भरो। यू कैन नॉट बिलीव दैट। ये महात्मा कैसे बने? वो हम सब जैसे आत्मा ही थे जो महात्मा बने, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को महान कर दिया था। और महान क्या किया? शुरुआत, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके बच्चे यदि घर में लड़ाई करते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं, आपको घर से निकालने की बात भी करते हैं, ये यथार्थ है। मैं फेरी टेल में नहीं बात करूंगी, ये सच्चाई है। अब बताओ, हमने सीखा है कि यदि कोई हमसे प्यार से बात करे तो उससे प्यार से बात करना कोई बड़ी काम नहीं है, ये तो हर कोई करता है। उससे एक ऊपर लेवल ये होता है कि यदि कोई मुझे गाली दे दे और फिर भी मैं उसके लिए दुआ करूं, शुभ कामना करूं। यदि कोई मुझे गाली दे, घर से निकालने की बात करे, यदि बदतमीजी करे, उसके बाद भी यदि मैं उसके लिए शुभ सोचूं, उसके लिए दुआएं करूं, क्योंकि हमेशा गलत बात असंतुलित दिमाग करेगा, गालियां अशांत मन देगा, किसी का नुकसान बिल्कुल जो रेस्टलेस दिमाग हो वो ही कर पाएगा। तो सिर्फ शांत मन से सोचो, यदि हमारे बच्चे इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो अशांत हैं, अस्थिर मन से हैं, उनका दिमागी संतुलन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इस समय आपका काम बनता है कि अपने अशांत बच्चों को दुआ देना, शांति का काम देना, उनके मन को शक्ति देना, उनको बल देना। अब कैसे दोगे आप? क्योंकि सॉरी, इस समय सिचुएशन आपकी बहुत क्लियर है। आप में से अधिकतर किसी न किसी को उम्र के हिसाब से शरीर में बीमारियां हैं, किसी को मन में बीमारियां हैं। शरीर की बीमारियों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। कई हैं जो डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, कितने हैं जिनको हड्डियों में बीमारी है,
जिन कितने हैं जिनको कहीं ना कहीं कैंसर है या गांठ हो रही है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कानों से सुनाई में मुश्किल होता है, किसी को आंखों से दिखाई में मुश्किल होता है, किसी के मसल्स इतने वीक हो गए, और ये नेचुरल हो रहा है, उम्र के साथ साथ हो रहा है। किसी को अब मानसिक तकलीफ जैसे डिमेंशिया, हम भूल जाते हैं चीजें कहाँ रखते हैं, हम भूल जाते हैं, किसी ने कोई काम बोला हम वो भूल जाते हैं, ये डिमेंशिया की तकलीफ हो रही है। फिर अल्जीमर होता है जिसमें आपका शरीर पे से थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जा रहा है। फिर किसी को बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करने की बीमारी हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी का जीवन साथी छूट गया, उसको अकेलापन बहुत ज्यादा लगता है, या लॉकडाउन में आपके किन्हीं किन्हीं दोस्तों ने शरीर छोड़ दिया। ये वास्तविकता है। अब इस तकलीफ के साथ हम हमारे बच्चों को, यंग जनरेशन को क्या दें, क्योंकि जो देता है ना वो देवता है। आपको आज भी नहीं, मरते दम तक भी लेना नहीं है। मेरे पापा कहते थे हमेशा हमको, मेरे बच्चे कभी रिटायर होने का सोचना नहीं, आखिरी सांस तक काम करते ही रहना। और जब एपीजे कलाम को देखा तो इतना अच्छा लगा कि अंतिम सांस भी वो लेक्चर देते हुए उनकी निकली। बस दिस इज द रोल मॉडल। हमारा जीवन ऐसा हो कि एक गिलास पानी लेने के लिए भी हमें बच्चों को आवाज लगानी नहीं पड़े, उसके पैसे के लिए हमें हाथ फैलाना ना पड़े। हम जब से उसके कनेक्शन में आए उसको दिया है और अंतिम सांस तक देंगे। आज उसके पास पैसा है, आज उसके पास रिश्ते हैं, उसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसके मन बहुत अशांत है। अब हमारी ड्यूटी है कि उसके मन के लिए हम कुछ करें। अब आपका शरीर यदि कमजोर हो रहा है, यदि बार बार भूल जाते हो, फिर भी याद रखो कि ये एजिंग का प्रोसेस आप स्लो कर सकते हो, बीमारियों को आप दूर कर सकते हो, आप शरीर में ऊर्जा, उत्साह, उमंग रख सकते हो सिर्फ कुछ चीजें यदि करोगे। मैं अगले महीने 50 साल की होने वाली, ठीक है, और बस 10 साल में आपके बराबर आने वाली ठीक है, लेकिन पहले से प्लानिंग चल रही है। पिछले 20 साल से रेगुलर योगा, पिछले 13 साल से सुबह 4 बजे उठना है और मेडिटेशन करना है। जब क्लिनिक के लिए कार से निकले और वापस आते हैं तो सिर्फ लोगों के लिए दुआएं करना है। रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट कुछ भी हो जाए मेडिटेशन करना ही है। जितना भी समय मिलता है सब शुभ सोचना। क्या फायदा होगा उससे? मेरे मन में कभी बीमारी आएगी नहीं, मेरे तन में कभी कैंसर की गांठ हो नहीं पाएगी, मेरे से बीमारी दूर भागेगी। प्लानिंग है और हम सबको इस तो हमें पहली चीज तो कभी भी रिटायर में हो भाई म्यूट कर दीजिएगा ना बाकी को, राइट। तो पहली चीज, कभी भी अपने को रिटायरमेंट की लाइफ नहीं देना, अपने आप को बोलना ही नहीं। तो लक्ष्य बनाओगी। दिनेश भाई आप म्यूट करेंगे? दीजिएगा, थैंक यू। बनाते हैं ना, हमारे शरीर में वैसे लक्षण आने शुरू होते हैं। यदि आपने लक्ष्य बना दिया कि मुझे बिल्कुल स्वस्थ रहना है, मेरा शरीर बिल्कुल टनाटन रहना है, मेरा दिमाग एकदम शार्प रहना है, जैसे जेठमलानी का था, मिनटों में लाखों कमाते थे वो, राइट। करना है तो सब जरूरी है, तब आप अपने बच्चों की और परिवार की सेवा कर पाओगे। अब कैसे करना है? सबसे पहला चीज, आपके पास आपके पास ब्रेन, सबसे पहले फोकस अपने मन पे करो, क्योंकि सबसे पहले अटैक मन पे होता है, बुरे विचारों का। मन को काम ये सोचते रहना, यहाँ तक कि जब सोते हो ना तभी भी आप सोचते ही रहते हो। लेकिन सिर्फ याद रखो, मन का काम है सोचना, क्वालिटी आप डिसाइड करोगे। और यदि उस क्वालिटी में सिर्फ एक ही चीज पकड़ लो, शुभ भावना दूसरों के लिए, शुभ कामना खुद के लिए, बस एक, ये हमारा मंत्र है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। उसके घर में क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ,
कुछ नहीं मालूम, सिर्फ शुभ सोचना और शुभ बोलना, इसके सिवा मुझे आता ही नहीं। अब यदि सोचा, किसी को पता चला कि आपके दोस्त को कोरोना हो गया, किसी के बच्चे को कोरोना हो गया, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, किसी की बस पलटी हो गई, उसमें 70 लोग मर गए, अब आप क्या करोगे? ये नहीं सोचना हे भगवान कैसे हो गया, क्या हो गया, नहीं। जैसे न्यूज मिली, आपको अपना काम करना है कि हे ईश्वर, इसके परिवार को शक्ति मिले, ये आत्मा शांत हो जाए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। इसके परिवार का मनोबल आप बढ़ा के रखो, उसको ये सहन करने की शक्ति दो, उसको इस परिस्थिति से सामना करने की शक्ति दो। जैसे आपने ये दुआएं दी, आप पे किसी भी बीमारी का असर हो नहीं सकता, क्योंकि आप दुख लेते नहीं है किसी का, आप किसी का टेंशन लेते नहीं। किसी का टेंशन हुआ, किसी का परिवार टूटा, किसी का तलाक हुआ, आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरे घर में हो सकता है, ये अशुभ विचार। आपको याद रखना है कि मुझे यहाँ पर इस दुनिया में आपसे कम उम्र वाले दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, चाहे एक्सीडेंट में जा रहे हैं, चाहे कोरोना में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं, और आप और हम यहाँ जिंदा हैं। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने हमें कुछ काम दे के रखा हुआ है, और जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक हम भी जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने काम को समझो। अब हमारा इधर उधर की गॉसिप में टाइम वेस्ट नहीं करना, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके रिश्ते का क्या हुआ, किसका सोना जवाहरात का क्या हुआ, कुछ लेना देना नहीं। मैं देखो कुछ नहीं पहनती, कोई काम नहीं आने वाला ये सब। श्रृंगार करो तो शुभ विचार का करना है, श्रृंगार करना है तो शुभ कामनाओं का करना है। तो सबसे पहला आपके पास है मन। मन को सिर्फ शुभ 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 से भर डालो। आपको नहाते समय, खाते समय, ब्रश करते समय, कमोड में बैठते समय, सोने जाते समय, उठते समय, सिर्फ एक ही चीज, हे ईश्वर सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब। आपने इसको मंत्र बना लिया तो गारंटी लेके चलो, किसी बुरी चीज का आपके मन में प्रभाव बढ़ ही नहीं सकता। कर सकेंगे तो हाथ उठा के। एक सेकंड लावण्या बहन, आपका माइक्रोफोन के ऊपर कुछ कपड़ा रख दो नहीं, क्योंकि जो आवाज के साथ में जो एयर आता है ना, तो उसकी वजह से गूं 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 आवाज आता है। हाँ, वो आ रहा है। आपका माइक्रोफोन के ऊपर एक रुमाल रख दो, ये फैन माइक्रोफोन के ऊपर एक रुमाल रख दो, तो उसकी वजह से जो हवा की आवाज आती है ना, गूं होता है, वो निकल जाएगा। हाँ, मैंने फैन बंद किया, अभी आ रही है? उसकी आ रही होगी मेरे सर के ऊपर, अभी नहीं आ रही है? नहीं, वो क्या है, मैं समझ गया, हवा की आवाज आ रही है। आपको फैन बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कटका ऊपर लगा दो, हैंडकरचीफ लगा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, राइट। अभी आ रही है? अभी क्लियर है? क्लियर क्लियर है नलिन भाई। वेरी चालू करो, कोई तकलीफ नहीं, आप सिर्फ वो एक कटका लगा लो बस। दूसरा भी चालू है मेरा फैन, ठीक है। तो अब सबसे पहला है कि हमें अपने मन से सिर्फ शुभ सोचना है, ताकि शुभ सोचने से हमें याददाश्त खत्म होने की बीमारी नहीं होती, हमें एल्जाइमर से हम बच सकते हैं, हम बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, इस सब बीमारियों से बचेंगे यदि हमारा मन सिर्फ शुभ सोचेगा। पॉसिबल है सबके लिए? तो हाथ उठा के बताएं। यस, वेरी गुड। क्योंकि मैं वही बताऊंगी जो मैं खुद करती हूँ, जो मैं नहीं करती वो मैं कभी किसी को बोलती नहीं। तो पहला काम ये। अब दूसरा काम है हमारा ब्रेन। ब्रेन की अभी बहुत सारी बीमारियां होती है उम्र के साथ साथ, आप कुछ करते नहीं लेकिन अपने आप होती है। तो अब अपने ब्रेन को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ब्रेन को भोजन है ग्लूकोज, और उसका भोजन है दूसरा ऑक्सीजन। यदि हमारे ब्रेन को कभी ऐसा हो ही नहीं कि हम भूलने की बीमारी हो जाए, चीजों को कहीं भी रखते हैं हम भूल जाते हैं, तो बच्चे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए याद रखना है कि डायबिटीज वाला ग्लूकोज कैसे ले पाएगा? उनके लिए कोई दूसरी चीज बनाओ। बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज मतलब आप जो भोजन खाते हैं ना, उसमें ग्लूकोज ही होता है, उतना ग्लूकोज है। शुगर नहीं, शुगर तो मैं भी नहीं खाती, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शुगर तो बहुत ज्यादा नुकसान करती, पॉइजन है वो। चाय भी मैं बिना शुगर की पीती हूँ, ठीक है। ये
शुगर, राइस चावल और तीसरा मैदा, ये तीनों चीज जहर है। यदि अपने को स्वस्थ रखना है तो ये तीनों चीजों को दूर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आता है ब्रेन की बात। तो ब्रेन का जो भोजन है ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। तो अब यदि हमें अपने ब्रेन को जेठमलानी जैसे एकदम शार्प रखना है, नरेंद्र मोदी जैसे एकदम शार्प रखना है, जो बड़े से बड़े डिसीजन ले सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप प्राणायाम जब करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल आपका इतना हाई होता है तो पूरा ब्रेन ऑक्सीजन से भर जाता है। तो उससे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी, दिमाग एकदम शार्प चलेगा, आपको नई नई चीज सीखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा और किसी की भी बात को समझने में फटाफट समझ पाएंगे जो पहले भी नहीं समझ पाए थे। राइट? तो इसलिए आपका काम है प्राणायाम। और प्राणायाम में भी यदि आप अनुलोम विलोम करते हैं, यदि आप ये वाला आप सबको पता होगा भ्रामरी, दूसरा भ्रामरी रोज मैं कम से कम आधा घंटा करती हूँ। और फिर होता है ये वाला जो होता है भस्त्रिका, लंबी सांस लेना और छोड़ना, लंबी सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, और इसके साथ यदि आप ओम करते हैं, सिर्फ 4 प्राणायाम करने से आपके ब्रेन में और शरीर की एक एक कोशिका जो मर रही है, जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड का प्रवाह नहीं हो रहा, वो सब जीवंत होना शुरू होती। तो आप अपना एजिंग का प्रोसेस को स्लो कर दोगे। और इसी की तैयारी हम लोग करते हैं कि हम लोग रोज कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा प्राणायाम करते हैं, 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। जब तक अपने को आप भरेंगे नहीं, दूसरों के लिए देंगे कैसे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्राणायाम करें। अब आया आपका मन, शुभ विचारों से भर दो, ब्रेन उसको ऑक्सीजन से भर दो, और अब आता है शरीर की बारी। क्योंकि जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कैसे कर पाओगे? क्योंकि पूज्य हम सिर्फ तब बनते हैं जब हम करते हैं किसी के लिए। तो अपनी अवस्था को कभी नीचे नहीं करना। अब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है। जब 75 इयर्स के मेरे ससुर भी कर सकते हैं, मेरी मम्मी जो है 80 साल की वो भी कर सकती हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ चलना है। कितनी देर चलना है? अपने घर के अंदर जितना भी बड़ा घर हो, बारिश होती है बाहर नहीं जाना, अभी बाहर जाना खतरा है, तो अपने घर में जितनी जगह है उसमें लगातार 30 से 40 मिनट यदि आप चलते हैं और हाथ पैर स्विंग करते हुए चलते हैं, तो क्या होगा? पूरे जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे। और लंबी सांस लेना और छोड़ना, लंबी सांस लेना और छोड़ना, तो शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह, खून का प्रवाह पूरे शरीर में होगा और चेहरे में चमक आ जाएगी, आपकी आंखों में भी चमक आ जाएगी आपको। सो 30 से 40 मिनट का यदि रोज वॉक करें। मेरे जो मेंटोर थे, जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, वो साइकियाट्रिस्ट, आज उनकी उम्र 85 इयर्स की है। मैंने ये सब उन लोगों से देख देख के सीखा। जब मैं वहां पर थी शादी से पहले, मेरी शादी को भी 20 साल हो गए, तो उस समय वो रोज सुबह 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर उनका वॉकिंग कंपलसरी था। इतने स्मार्ट थे वो डॉक्टर। और आज भी जब मैं उनसे मिलती हूँ 85 में, आज भी उनका वही प्रोसेस है। रात को 6 बजे के, शाम को 6 बजे के बाद खाते नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का खाना, ना पेट है ना कोई बीमारी है, और आज भी वो 15-15 घंटे काम करते हैं। ये सब लोग हमारे रोल मॉडल है। अब हम कैसे बोले सीनियर सिटीजन, अरे इनको देख के तो हम सीखते हैं कि हमारा भी बुढ़ापा बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप सब अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं। मुझे क्यों प्राउड होता है? मेरे पापा हमेशा बताते थे, मैंने मेरे दादाजी को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे दादाजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उस समय के गोल्ड मेडलिस्ट, वो अंग्रेजों के समय के थे। और वो जब 80 इयर्स के थे तब उन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ना सीखा। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे पापा इतना रिस्पेक्ट करते थे और हमको उनकी कहानियां बताते थे, उनका मेडल हमको दिखाते थे, बेटा तुम याद रखो तुम्हारे अंदर कौन सा खून बहता है। और जहां मंदिर था वहां उनकी फोटो होती थी, और उन्होंने जीवन भर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनको अगरबत्ती लगाते थे। तो तब हमें समझ में आया कि ये जो हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे खून में बह रहा है। तो जो वो करते हैं वही हम करते हैं। तो जब वो बताते हैं कि कभी आदमी रिटायर होता नहीं, इतनी उम्र में भी वो सीखता ही रहता है, तो आज हम लोग के अंदर भी वही, हम लोग 4 भाई बहन हैं, लेकिन आज 4 के 4 एक भी बीमारी से ग्रसित नहीं। मैं सबसे छोटी हूँ,
में से जो सबसे बड़े हैं वो मुझसे 10 साल बड़े, लेकिन सबकी जो लोग इस लॉकडाउन में बाहर चलने के लिए नहीं जा सकते, तो एक आप, मैं जो करता हूँ, मैं 3:30 बजे सुबह उठता हूँ, 4 से 5 बजे तक मैं मेडिटेशन करता हूँ और 5 से 5:30 बजे मैं नाचता हूँ। कितने? 4 से 5 बजे तक मेडिटेशन होता है मेरा, और 5 से 5:30 बजे तक आधा घंटा मैं नाचता हूँ। अपना हिंदू में ही एक ऐसा देव है नटराज, जो नाचता हुआ बताया है। अपना धर्म नाचता हुआ है, तो नाचेगे ना तो आप चलेगे नहीं तो चल सकता है, क्योंकि हर बॉडी का हर पार्ट को आपको मूवमेंट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो नाचो, नाचो, गाओ, मस्ती मजाओ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि यही चीज ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइंटिफिक है जो आपने बताया ना। नहीं भाई, यदि आप गाना लगाते हैं अपने समय के पुराने गाने और अपने कमरे को बंद करो, चाहे बच्चे कुछ भी बोले, और आप सिर्फ मस्ती में झूमो, नाचो, गाओ, तो आपके ब्रेन का केमिकल चेंज हो जाता है, और वो केमिकल का नाम है एंडोर्फिन और डोपामिन। ये 2 ही हार्मोन हैं जो आपको कभी बीमार होने नहीं देंगे, क्योंकि जो आप दवाइयां भी खाते हैं उसमें भी यही हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन वो बहुत स्लो होते हैं। लेकिन आप जब मूड करते हैं, जब आप गाना गुनगुनाते हैं, जब आप ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, अपनी पसंद की किताब पढ़ते हैं, अपनी मस्ती में नहाते हैं, गाना सुनते हैं, थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं, झूम झूम के नाच लेते हैं, बस समझ लीजिए आप, ये सब हमने माँ बाप से सीखा। बाद में पता चला कि ये तो साइंटिफिक चीज है। मेरे पापा घर में घुसे, मतलब हमको उनकी सीटी की आवाज सुनाई में आ जाती थी, वो कोई ना कोई गाना विसिल में बजाते हुए आते थे, और मम्मी गुस्सा करती थी कि तुम कैसे आते हो, बच्चे बड़े हो गए। आज हमें पता चलता है कि ये खुशियों का इजहार करना बहुत जरूरी है। काम की जगह छोड़ दो, और उसके बाद हंसते मुस्कुराते आओ, पूरे परिवार के साथ पिक्चर भी देखना, होटल भी जाना, सीरियल भी देखना, सब कुछ करना, यही जीवन का रंग है, यही जीवन का तरीका है। तो नहीं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को केमिकल देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हुआ? एक तो मन, जिसमें से शुभ विचार, दूसरा हमारे पास तन, जिसके लिए चलना बहुत ज्यादा जरूरी, और यदि कभी ऐसा होता है घुटनों में दर्द है, पैरों में तकलीफ है, आपकी कमर में तकलीफ हो रही है, तो जबरदस्ती कोई काम नहीं करना, जो अपना शरीर साथ दे। तो उसके लिए दूसरे तरीके हैं कि आप शरीर में देखो जितने भी जोड़ हैं, उस हर जोड़ की एक एक एक्सरसाइज है। जैसे गर्दन पकड़ेंगे आप, तो बिल्कुल इसके ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते। फिर अपना दूसरा जोड़ होता है ना, उसके लिए देखिए ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बराबर। इसी तरह से आप जो पैर का जॉइंट, पैर है ना आपका तलवा, उसमें बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप घुटनों से ऊपर नीचे कर सके तो भी उतना जरूर कीजिए, क्योंकि याद रखना, जो लक्ष्य होगा अपने आप आएगा। ये लक्ष्य बनाया है, मुझे कभी किसी ना है, देना है, क्योंकि ये देवता के लक्ष्य है। यदि लक्ष्य बना लिया तो आपका शरीर, आपका मन अपने आप ही आपको साथ देगा, ठीक है। अब आता है न्यूट्रिशन, खाना आपको बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको ऐसा लगता है बस मैं दवाई खा लूं। नहीं, दवाई तो आपको टाइम से खाना है, एक्सरसाइज तो आपको करना है, लेकिन आपकी गैस्ट्राइटिस ना हो उसका ध्यान रखना, पेट का ध्यान रखते हुए आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा कितनी औरतें हैं जो कैल्शियम नहीं लेती हैं, जबकि कैल्शियम की मात्रा 35 इयर्स से जैसे आप आगे बढ़ते हो हड्डियों की तकलीफ हो जाएगी। कैल्शियम और D3 ये लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको हड्डियों की तकलीफ ना हो। तो यदि अभी तक नहीं भी लेते हो तो अभी लेना शुरू करो। दूसरा, कभी कभी महसूस होता है बहुत थकान लग रही है, कुछ काम नहीं कर रहे फिर भी मन उदास है, थकान लगती है, तो अपना एक बार चेकअप जरूर कराओ, कहीं B12 की कमी तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने शरीर को स्वस्थ रखने बहुत जरूरी है। अभी बीमारियां
इतनी है तो हर 6 महीने में अपना एक बार पूरा ब्लड टेस्ट जरूर कराओ और साल में एक बार पूरे शरीर का चेकअप। आपको मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं खुद अपना रेगुलर करवाती हूँ ताकि कुछ दुर्घटना होने से पहले ही आप अपने आप को पहले से संभाल लो। ठीक है, तो अपना केयर करना बहुत जरूरी। जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप किसी के लिए कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों के भरोसे नहीं रहना। यदि आप अपने लिए एकदम अलर्ट है तो बच्चे भी समझ जाएंगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नया नया सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपका ब्रेन एकदम एक्टिव रहे। नया मैंने जैसे नलिन भाई ने बताया कि उन्होंने कंप्यूटर का बहुत कुछ सीखा, एक्सेल सीखा, बहुत कुछ सीखा। इसी तरह से यदि आप घर पे रहते हो तो कुछ न कुछ सफाई के तरीके, खाना बनाने के तरीके, कोई कटिंग का तरीका, कुछ नया नया क्लीनिंग का तरीका, कुछ न कुछ नया सीखा आपने। मतलब समझ लो कि आपका ब्रेन शार्प रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही रहे तो हमारी ब्रेन की जो सेल्स है ना वो डेड होती जाती है, उसकी कोशिका। और फिर आप बोलोगे कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें मिस्टेक किसी की नहीं है, उम्र की भी मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमने उम्र के हिसाब से अपनी तैयारी नहीं की है। ठीक है, तो हम ध्यान रख सकते हैं। ये सुनो, हाथ उठा के, अरे वाह, वेरी गुड। चलो अब बात आती है, अपना केयर किया अपन ने। अब बात आती है कि अब अपने बच्चों से कैसे डील करो, क्योंकि आजकल आपके समय के बच्चे, मेरे समय के बच्चे और उनके भी बच्चे, बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग कहना तो मानते थे, आज्ञा तो मानते थे, बड़ों ने बोला है तो। ठीक है, बहुत सारी बुराइयों से भी बचे हुए थे और आज तक बचे हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। मैक्सिमम बच्चे, हाँ कुछ श्रवण कुमार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अधिकतर है जो कहना नहीं मानते। अब उनसे कैसे डील करो आप? 3 है इसके, 3 पत्ते। जैसे हम पत्ते खेलते हैं ना तो उसमें 3 पत्ते हैं, इसको बोलते हैं 3 A's। पहला, एक्सेप्ट। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनके काम करने का तरीका आपके तरीके से बिल्कुल अलग है। और आप चूंकि उनका बुरा नहीं हो इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी देते हैं जिसको वो बिल्कुल सुनते रहे। तो सबसे पहला यदि उनके साथ हमें मिल के चलना है तो सबसे पहला उनको जो है, जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो। यदि वो रात को 2 बजे सोते हैं, 4 बजे सोचते हैं, आपका दिल बहुत दुखता है कि मेरा बच्चा कितना गलत काम कर रहा है। यदि दारू भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है, आपको लगता है मेरा बच्चे का कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी एक्सेप्ट करो वो ऐसा है। सेकेंड स्टेप, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब यदि वो 10 में से 3 चीजें बहुत गलत करता है, 7 चीजें ऐसी होंगी कि शायद वो अच्छा भी करता होगा। तो एक्नॉलेज का मतलब कि वो क्या अच्छा करता है, फोकस सिर्फ वहां शिफ्ट कर दो। काम पे जाता है, पैसे कमा के लाता है, बीवी बच्चों को घुमाता है, घर में साग भाजी भी लाता है, और कभी कभी महीने में एक बार आपसे पूछ भी लेता है, पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो। बस बहुत है। पहला उसको स्वीकार कर लो उसकी कमियों के साथ। दूसरा, उसको एक्नॉलेज करो कि अरे इतना तो करता है कम से कम, यदि मेरा कल को बच्चा ही नहीं हुआ तो इतना भी कौन पूछेगा। तो इतना एक्नॉलेज करो कि यदि 3 गलत काम करता है तो 5 या 7 अच्छे काम करता है, वो एक्नॉलेज करना। और तीसरा, एप्रिशिएट करना। आज हर कोई भूखा है तारीफ का, हर कोई भूखा है, और किसी के सीधा दिल में उतरना है ना। पहले बोलते थे पेट से उतरो, तो आजकल पेट इतना बड़ा हो जाता है आप पेट से उतरेंगे तो ठीक है, खिला खिला के तो पता चला बीमारियां हो जाती है, तो अभी पेट से नहीं उतरना। तारीफ किया आपने तो आप सीधा यहाँ उतर जाते हैं। ठीक है, तारीफ कैसे, बिल्कुल जेन्युइन, झूठ नहीं, जेन्युइन। आप उसको ऑब्जर्व करो कि मेरा बच्चा क्या अच्छा करता है। चलो आपको नहीं पूछता, अपनी बीवी को पूछता है ना, उसके बच्चे को हर चीज दिलाता है ना, तो कभी उसको प्यार से बुला के बैठाओ, क्या मुझे बहुत अच्छा लगा है जो मैं नहीं दे पाया तो अपने बच्चों को दे पाता है। आप इतना सा बोलोगे ना, उसका दिल आपके लिए ऐसा खुल जाएगा। वो आपको कहीं नहीं ले जाता, लेकिन वो अपनी पत्नी को लेके जाता है ना, उसको बुलाओ,
बेटा तो अपनी बीवी का कितना ध्यान रखता है, ये गलती मुझसे हुई थी जो तू नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग जाते हो, इतना बड़ा दिल हो जाएगा। मैं लिख के देती हूँ कि 4 बार में से 2 बार वो आपको लेके जाएगा। मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरी सास, मेरी जो मदर-इन-लॉ, मेरी इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन मैंने मेरी सास में क्या देखा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी मैं बात करूंगी ना उनकी सिर्फ तारीफ करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखाया, सिखाया कि माँ बाप कैसे होते हैं। यदि खाना खाया हमने, उन्होंने कभी हमको नहीं बोला कि बेटा टेबल तुम्हें साफ करनी है, वो खुद उठ जाती है और साफ कर लेती है। वो मेरे बच्चे को रखती थी, वो बोलती थी बेटा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ जाओ घूम के आ जाओ, बच्चा मैं संभाल लेती हूँ। हमारा दिल अंदर से ऐसा होता था कि मतलब मम्मी कैसे बोलती हैं। फिर उसके बाद जब अंदर से ऐसा लगता है ना, तो लगता था हम कैसे चले जाएं, हमको लेके ही जाते थे। कभी मूवी होगा तो उनको लेके ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे माता पिता कभी बोझ नहीं हो सकते, जो हमें इतनी स्पेस देते, हमें इतनी फ्रीडम देते, हम कैसे उनको घर पे अकेला छोड़ दें। तो ये सब चीज ना दिल से होती है। वो हमारी तारीफ करते थे, वो हमारी जवाबदारी लेते थे, बेटा तू खाना मत बना, मैं बनाती, तू ऑफिस चले जा। तब ऑफिस जाते जाते भी दिल में लगता था कि मम्मी वहां कितना कर रही है। ऐसे जब आप दिल पे उतर जाते हो ना, आप कभी बोझ नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ऐसे माता पिता की जरूरत है आज, सिर्फ उनको अप्रिशिएट करो। तो 3 चीज पकड़ना, एक तो एक्सेप्ट, वो जो है जैसे है, उनकी जीवन शैली है, उनको जीने दो। एक्नॉलेज, 10 में से 2 भी अच्छा करते हैं, एक्नॉलेज करो। और अप्रिशिएट, 10 में से 1 ही काम भले आपके लिए ना करे, किसी और के लिए करता हो, अपने बिजनेस पार्टनर के लिए करता हो, उसके लिए अप्रिशिएट करोगे, उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा कि कोई तो मुझे समझता है, वो आपका हो जाएगा। तो हम अपने बच्चों से ये 3 पत्ते इस्तेमाल कर सकते डेफिनेटली, या वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए हम क्या करें कि ये हमारे दिल में रहे, ये हमें सम्मान दे, ये हमारी कीमत को समझे, क्योंकि आप उम्र में भी बहुत है, अनुभव में भी बहुत है, ठीक है। और ये बच्चों के पास आजकल टाइम, अपने बच्चों के लिए भी टाइम है, क्योंकि ये पूरे समय काम में लग रहे थे। 9 बजे जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई तो 7 बजे आते हैं शाम को, कोई 8 बजे आते हैं, कोई 9 बजे आते हैं। टाइम नहीं है इनके पास, और आने के बाद भी मोबाइल है या न्यूज चल रहा है उनका, किसी के लिए टाइम नहीं है। अब इन बच्चों को यदि आपको अपने कंट्रोल में रखना है, प्यार से बांधना है, तो कैसे करोगे? बहुत सिंपल तरीका है। किसी को मन से पकड़ना है ना, तो सीधा तीर मन पे मारना पड़ता है, यहाँ का तीर यहाँ जाता है, ठीक है। और लॉजिक की बात करेंगे तो यहाँ से टकरा के वापस चला जाता है, इसलिए सीधा यहाँ उतरना चाहिए। इसलिए इन बच्चों के लिए पूरे दिन में कम से कम 3 बार मेडिटेशन करना जरूरी है। લાવણ્ય બેન નો અવાજ બંધ થઈ ગયો છે। हाँ, आवाज आ रहा है अभी? हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है। अब पहला जो मेडिटेशन है, जैसे ही आंखें खुली, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे, आपके पास फ्रीडम है। आप जब उठो, सबसे पहला काम अपने बच्चों के लिए 5 मिनट बिस्तर पे बैठे बैठे, मेरा बच्चा जहां भी हो, जिस भी कमरे में हो, दुनिया में कहीं भी हो, बहुत सुखी है, शांत है, सच्चा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, सही गलत की पहचान जानता है, अपने माता पिता की कदर जानता है, वो ईश्वर की संतान है, वो हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ेगा। आप अपने बिस्तर पे बैठ के 5 मिनट जो ये तरंगे छोड़ोगे, आपका बच्चा कहीं भी होगा, चाहे वो गहरी में भी होगा, सीधा उसके अंतर मन को फिट कर देगा। और यदि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन लगातार किया, आप देखोगे कि आप बोल रहे हो उसके व्यवहार में आ जाएगा। और क्या चाहिए हमें? इसके आगे हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में उस सारी अच्छी चीजों को बार बार हिट किया,
वो ट्रिगर हो गई। इसका जस्ट उल्टा, यदि आपने बोला मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं, अपनी बहन को फोन करके बोला, सोसाइटी में किसी के पास बोला मेरी बहू तो सुनती नहीं, वो तो कहना ही नहीं मानती, वो तो अपने मन का ही करती है, तो आप वही काम कर रहे हो, लेकिन बहू के दिमाग का वो हिस्से को ट्रिगर कर रहे हो जिसमें वो कहना नहीं मानती, वो बदतमीजी करती है, वो बात नहीं करती, वो अपने बच्चों से मिलने नहीं देती, तो वो ट्रिगर होके वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसलिए यदि वो करती भी है तो भी किसी से बोलना नहीं है। आप क्या चाहते हो आपको सिर्फ वो बोलना है, और मेहनत है सिर्फ 10 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की। और यदि बच्चों के अंदर वो सारी चीजें जागृत हो जाए, ये पावर माता पिता के सिवा किसी का नहीं। ये कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई पड़ोसी नहीं कर सकता, कोई सास ससुर नहीं कर सकता। ये पावर ईश्वर ने सिर्फ माता पिता को दिया है। उस पावर को इस्तेमाल करने का अब समय है हमारे पास। आपने पहले धन से मदद किया, आपने पहले उनको तन से मदद किया, अब ये दोनों की उनको जरूरत नहीं है, अब उनको ये तीसरी जरूरत है। माता पिता कभी बच्चों से मांगते नहीं। आज हम लोग का भी माइंडसेट बिल्कुल रेडी, कभी बच्चे से नहीं मांगना है, हमें अंतिम सांस तक देना है। और हमेशा मेडिटेशन में होता है कि हे ईश्वर इतनी शक्ति देना कि हम अंतिम सांस तक सिर्फ दें और दें, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और ऊपर वाला सुनता है हमारी, और वो सुनता है और देता भी है। तो अब हमें बच्चों के लिए 3 टाइम मेडिटेशन करना, एक सवेरे, फिर वो मेरी बहू हो, बेटा हो, बेटे का बेटा हो, कोई भी हो, ठीक है। दूसरा टाइम शाम को 7 बजे। 7 बजे इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली शाम के समय तनाव शुरू होता है, लोग अपने अपने काम से घर आते हैं, उसी समय ट्रैफिक बहुत होता है, दिमाग में चिड़चिड़ाहट भरी रहती है, भूख भी लगी रहती है, और कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन, जिसको टेंशन का हार्मोन बोलते हुए निकलता है। उस समय सबसे ज्यादा तनाव होता है सारी दुनिया में। उस समय हम माता पिता का क्या काम है? बिल्कुल अपने सामने देखो, मैंने एक ग्लोब रखा है, रोज का नींद हेलो, आपका आवाज सुनाई नहीं देता है। अपने किसी का है, किसी ईश्वर सब सुख रहे, सब शांत रहे, सबका जीवन बहुत स्वस्थ रहे। 5 मिनट आपने दुआ कर ली, याद रखो वो दुआओं से तो स्वास्थ्य आता है, वो दुआओं से तो जीवन दुआ वाला बन जाता है। तो दूसरा टाइम शाम को 7 बजे कभी भी छोड़ना नहीं। आप घर में हो, घर से बाहर हो, दुनिया में कहीं भी हो, बस 5 मिनट का टाइम आप निकालना, राइट। और तीसरा टाइम जब आप रात को बिस्तर पे सोने जाओ, मैं रोज सोने जाती हूँ और बीच में 2 बजे 3 बजे एक बार में नींद टूटी, करवट लेती हूँ और फिर से मैं बोलती हूँ ईश्वर सब सुखी रहे, सब शांत रहे, और फिर 2 मिनट लगता है फिर से नींद आने में। कभी नींद की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। आप बिस्तर पे जाएंगे 10 मिनट में आप सो जाएंगे। तब आवाज सबको आ रही है? क्लियर है? आवाज आ रही है? हाथ उठा। टाइम का मेडिटेशन ये और यंग जनरेशन को देने का। अब इसका इफेक्ट कैसा होता है वो भी मैं आपको बता दूं। यदि आपका बेटा अपने रूम में सो रहा है अपने परिवार के साथ, आप अपने रूम में, जैसे आप उसके बारे में लगातार शुभ सोचेंगे, उसको बार बार हिट होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, उसको रात को सपने में आप दिखने लगेंगे। उसको समझ में आएगा कि कोई मेरे लिए कुछ सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है, और जैसे आप सामने आएंगे उसको आपके प्रति बहुत स्नेह की वो स्नेह के संबंध आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे, स्नेह के संबंध में आएंगे। तो यदि हम इतना छोटा सा काम करके अपने परिवार को प्रेम से, स्नेह में और स्वर्ग बना सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम सब?
हाथ उठाइए जो कर सकते हैं, हाथ उठा के बताइए, कर सकते हैं आप? राइट, वेरी गुड। अब ये हुआ हमने परिवार को देना। अब मैं चाहूंगी कि आप अपने यार दोस्तों पे भी बहुत ध्यान रखो कि आप किनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। यदि आपके दोस्त जो आपको शाम में मिलते हैं, यदि वो बीमारी की बात करते हैं, यदि वो बुढ़ापे की बात करते हैं, यदि वो बेटा बहू घर में क्या क्या अत्याचार हो रहा उसकी बात करते हैं, अनलिमिटेड रहेगी। तो प्लीज कृपा करके ऐसे दोस्तों से प्लीज थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको लगता है कि आप दूसरों के दुख सुन रहे हैं, सुनते सुनते वो दुख कब आपके बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके दोस्त जिनसे आप बात करते हैं वो ऐसे हो जो पॉजिटिव बात करते हो, जो प्रोडक्टिव बात करते हो और जो सबके लिए शुभ सोचते हो, हंसते हो, बोलते हो, वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो। बस ऐसे दोस्त रहे तो आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी और स्वास्थ्य भी बढ़ते जाएगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो अपने दोस्तों पे, जैसे आप बच्चों को बोलते हो ना, बुरे दोस्तों के साथ नहीं रहना, संग का रंग चढ़ेगा, तो यही चीज आपके ऊपर भी होगी कि निगेटिव लोगों से दूर रहे, कंप्लेन करने वालों से दूर रहे। ठीक है? पॉसिबल? अब मैं आपको बता दूं, पॉसिबल। हाँ दिनेश भाई बोलिए, कुछ बोल रहे? हाँ नहीं पॉसिबल, लेकिन अभी टाइम इज ओवर मैडम। 2 minutes. Let her finish her speech. Time is unlimited. Continue. Continue. आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। मैं आपको बता कि कैसा बोलते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम बता देती हूँ, रियल स्टोरी। एक महिला थी 60 साल की। अब वो दादी थी और वो अपना, उनका जो पोता था ना, रोड पे नीचे खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी जो बॉल है, एक कार खड़ी थी उसके नीचे बॉल चली गई। अब वो दादी ऊपर से देख रही थी कि ये बच्चा बॉल निकालने के लिए वो कार के नीचे घुस रहा था, 5 साल का बच्चा था। अब जैसी दादी ने देखा कि वो कार के अंदर घुस रहा है नीचे की तरफ और कार जो थी वो न्यूट्रल पे खड़ी थी, तो वो थोड़ा सा हिलने लगी। जैसी दादी ने देखा, वो भाग के नीचे गई और उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर गई और देखा कि वो कार हिल रही है, उस बच्चे पे कभी भी चढ़ सकती है। वो भाग के गई, उसने कार ऐसे उठाया, बच्चे को खींच के निकाला और भागी। जैसे आसपास के लोगों ने ये घटना देखी कि एक बूढ़ी ने कार कैसे उठा ली और बच्चे को खींच के निकाल लिया, लोग उनकी तरफ भागे, लेकिन वो महिला सीधा अपने घर में घुस गई, दरवाजा बंद। लोगों ने खूब खटखटाया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। 1 दिन नहीं खुला, 2 दिन नहीं खुला और ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। 3 दिन बाद न्यूज वाले आए और उन्होंने बोला कि भाई आप खोलिए, तो उन्होंने खोला और फिर न्यूज वाले इंटरव्यू लेना शुरू किए कि आपकी उम्र 60 साल है, आपने इतनी बड़ी कार को हाथ से उठा दिया और बच्चे को बचा लिया, ऐसा हुआ, संभव कैसे हुआ? तब उस महिला ने बताया कि जब तक मैंने उठाया नहीं था तब तक तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं ये कर सकती हूँ। तो प्रेस वाला बोलता है तब तो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया। तब वो महिला बोलती है कि नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, 3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना सामना करूं। तो उन्होंने बोला, प्रेस वालों ने, कि आप दुखी क्यों हैं, आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया। तब उस महिला ने बोला कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैंने जीवन में आज तक कितने काम छोड़ दिए ये सोच के कि मुझसे होगा ही नहीं, लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने कार उठा दी तो मुझे एहसास हुआ यदि वो काम मैंने कर लिया होते तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। तब प्रेस वाला पूछता है कि अच्छा आज आपकी उम्र क्या है? 60। तो अब बताइए, आज भी कोई इच्छा है आपकी जिसमें आपको लगता है कि मैं कर सकती, मुझे करना चाहिए? तो महिला शर्माते हुए बोलती है कि मेरा आज भी मन था और कॉलेज के समय भी मेरा मन था कि मैं जियोलॉजिस्ट बनूं, जियोलॉजी पढूं, लेकिन नहीं, अब तो बहुत उम्र हो गई, अब तो पॉसिबल नहीं है। तब वो प्रेस वाला बोलता है, आज आप हैं 60 साल की और यदि अभी भी आपने जियोलॉजी का कोर्स नहीं किया तो 4 साल के बाद आप 64
ईयर्स की होंगी विदाउट एनी डिग्री, और आपको शायद यकीन ना हो 4 साल बाद वो लेडी जियोलॉजी डिपार्टमेंट में फ्लोरिडा में वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। तो जब हमें अब वेट नहीं करना है कि हमारा बच्चा अभी गाड़ी के नीचे उठे, हम गाड़ी उठाए तब पता चले कि हम क्या कर सकते। दूसरों के जीवन से हमें शिक्षा लेना बहुत जरूरी है कि हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे मन में शक्ति है, मनोबल है। जब महात्मा गांधी और यदि नरेंद्र मोदी भी कर सकते इस उम्र में, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एपीजे कलाम कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें इतना बड़ा नहीं बनना है, तो भी हम आज से तो 10 कदम ऊपर बढ़ सकते हैं। तो हमें मन को दृढ़ बनाना है, मनोबल को बढ़ाना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, अपने ब्रेन को बहुत शार्प करना है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन का सप्लाई देना है, उसको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, और अपने तन को स्वस्थ बनाना है तो अपनी दवाइयों पर ध्यान रखना, खाना बढ़िया खाना और एक्सरसाइज करना। यदि ये काम करेंगे तो हम पहले खुद का कल्याण कर सकेंगे और फिर दूसरों का भी कर पाएंगे, और हम वापस उसी स्थिति पे पहुंच सकते हैं जहां हम अपने बच्चों की नजर में पूजनीय हो, और जब बच्चे थके हारे आए और हमारी गोद में सर रखें तो उनका मन शांत हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए, उनको लगे कि अभी भी मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे सर पे है, ताकि वो बाहर जाके अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और जीत सके। सो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हर मुसीबत को राई बनाओ, रुई बनाओ और उड़ा दो, लेकिन नहीं तो उसके नीचे कब दब जाएंगे हमें खुद पता नहीं चलेगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नलिन। थैंक यू લાવણ્યાજી। थैंक यू। સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલના સેક્રેટરી દિનેશભાઈ દેસાઈ આપનો ઘણો જ આભાર માને છે। તમે સરસ રીતે અમને સમજાવ્યું શું કરવું, કેવી રીતે કરવું, શું નહીં કરવું, ખરેખર મજા આવી ગઈ। આ જ પ્રોગ્રામ આપણે જ્યારે અમારી મીટિંગ હશે અમારા હોલમાં, ત્યાં તમને મેં પાછા જરૂર બોલાવશો। અમને આશા છે કે તમે આવશો અને અમારા બાકી બધા સભ્યો, અમારી પાસે 250 જેટલા સભ્યો છે, એમને બી આવું બધું જ્ઞાન મળે તો એ લોકોને બી આનંદ મળશે। થેન્ક યુ વેરી મચ। हमारा सेक्रेटरी श्री દિનેશભાઈ ગભરાતા હતા કે 20-25 મિનિટ આપણે આપી શકશું, પણ આ જુઓ એક તમને રેકમેન્ડ કરું છું, માનવીના મન, આ બુક છે ને ગુજરાતીમાં છે, માનવીના મન। કારણ કે મેં તો સાયકોલોજીનો ઘણો અભ્યાસ કર્યો છું અને મેં ઘણો ફાયદો ઉઠાવ્યો છું। વેરી ગુડ। અને મારી છે ને સિક્સ પણ એટલી વિકસિત છે। મેં આજે જ આ અનલિમિટેડ પ્રોગ્રામ કેમ લીધો, કારણ કે મને ખબર હતી કે 20 ને 30 મિનિટમાં આ સંતોષ બધાને નહીં મળી શકે, આ વિષયને ન્યાય નહીં આપી શકે, એટલે કુદરતની આપણને બધી મળી જાય છે। ને આ 1.5 કલાક થયો, 5 વાગે આપણે 1.5 કલાક ચાલુ કરેલું, એમ છતાં બધા હાજર છે। આ આપણા પ્રોગ્રામની સફળતા છે કે બધાએ શાંતિથી સાંભળ્યો અને જીવનમાં ઉતારશે અને એ પ્રગતિ થશે। ફરીથી હું સિનિયર સિટીઝન કાઉન્સિલ એમની સ્પીચ ઘણી સારી હતી, રહેવાની હું ખાસ આભાર માનું છું, અને તમે આવી સેવા આપતા રહો અમને સિનિયર સિટીઝનોને, એવી આશા રાખીએ છીએ। ઓકે, બહુ સરસ। ગુડ ડે વાન્યા, ગુડ ડે વાન્યા। ઓકે, બહુ સરસ લાવણ્યાબેન। નલિન હવે બંધ કરી દે ભાઈ। હા બસ બંધ જ આવજો। નેક્સ્ટ એ પેલું બતાવે તે ચાલો હવે બંધ। ઓકે, once again thanks